Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is grade 5 English, Unit 1, Words, Sentences and Questions, Answers. So as you can see on the screen, there are words and sentences written, and below the words sentences are the questions and the answers. But first we shall go through the words sentences. Now in our previous videos we have already done the reading, the explanation and the word meanings of this unit. And today we will inshallah complete this chapter or the unit. Now as you can see, on the left side are the words written, and on the right side the sentences are written. Now you'll notice that there's no margin here in between, but you would have to draw a margin in your notebooks. Now, number 1, greed. Greed. She lost everything because of her greed. Greed लालच को कहते हैं. इस सेंटेंस का मतलब है कि उसने सब कुछ खो दिया, अपना सब कुछ. किसकी वजह से? अपनी लालच की वजह से. Number 2, dishonor. Dishonor. We should not bring dishonor to our country. हमें अपनी जो कंट्री है, हमारा जो मुल्क है, उसकी बेहुरमती नहीं करनी चाहिए. उसकी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से उसकी बेहुरमती हो जाए. Number 3, foe. Foe. He is such an honest man that even his foes acknowledge him. वो इतना सच्चा इंसान है, इतना ईमानदार इंसान है कि यहाँ तक कि उसके जो फोज हैं यानी दुश्मन हैं, उसके जो मुखालिफ हैं, वो भी उसको उसकी सच्चाई पे उसको सराहते हैं. Number 4, brag. Brag. Jack always brags about his new car. अब जैक जो है वो अपनी नई गाड़ी के बारे में बड़ी ऊंची लंबी बातें जो है वो हर वक्त करता रहता है. Number 5, erect. Erect. The grateful nation erected a statue in his honor. उसकी ताज़ीम में जो शुक्रगुजार कौम थी, उसने एक उसका स्टैचू खड़ा कर दिया. Now, the questions and answers. These are all the questions and the answers. There are only 3, and you would notice that there aren't any answers for question 1 and 2. That's because you have to do it yourself. You have to do question number 1 yourself and question number 2 as well. Question number 1, who is the poet of the poem All Things Bright and Beautiful? ये आपने क्वेश्चन खुद से करना है. ये आपको खुद से करना है क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और एक्सप्लेनेशन वीडियो में हमने ये डिस्कस भी किया था कि पोएम किसने लिखी थी. तो अगर आपको ये बुक में भी आपके लिखा हुआ है, तो ये आपको खुद से करना है. Question number 2, name some wonderful creations of Allah. You have to do this one yourself as well. अब यहाँ पे आपको अल्लाह ताला की कुछ ज़बरदस्त जो क्रिएशंस हैं, जो अल्लाह ताला ने तमाम जो तख्लीक की है इस कायनात की, इसमें आप इनमें कुछ भी लिख सकते हैं. Anything that comes to your mind, like the moon, the sun, the waves, human beings, animals, trees, plants, stars, the universe as a whole, everything. जो आप जो है जो आपको समझ में आता है उसके हिसाब से लिखते हैं, या पोम के हिसाब से लिख दीजिए, लेकिन अल्लाह ताला की क्रिएशंस में से लिखनी है आपने इसमें. So this one is fairly easy as well. Now question number 3, the last one. Write down 2 words each containing digraphs and trigraphs and silent letters
from the poem. अब डायग्राफ्स और ट्राइग्राफ्स और साइलेंट लेटर्स वाले वर्ड्स आपको पोएम में से ही देख के लिखने हैं, या आप खुद भी कर सकते हैं, और इसमें मजीद और दिए गए होंगे डायग्राफ्स और ट्राइग्राफ्स, और ये दिए गए इस तरीके से होते हैं कि इन्होंने रेड, ब्लू और ग्रीन से अलग अलग इनको नोटिफाई किया होता है. सो यू कैन सर्च फॉर देम एंड राइट देम, आप और भी लिख सकते हैं. यू कैन राइट मोर ऑफ दीज वर्ड्स. आई हैव रिटन 2 as the question has suggested or asked for. अब डायग्राफ्स होते क्या हैं? ये वो होते हैं, साउंड्स होते हैं जो दो कॉन्सोनेंट्स या दो लेटर्स से मिलके बनते हैं. जैसे यहाँ पे PL pleasure and CR creatures or creatures more like, ठीक है, creatures. ट्राइग्राफ्स वो होते हैं जो तीन लेटर्स से मिलके बनते हैं, जैसे ब्राइट एंड माइट. साइलेंट लेटर वो लेटर होता है जो जिसकी आवाज नहीं आती. स्पेलिंग में तो मौजूद होता है लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन में, वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में उसकी आवाज नहीं आती. फॉर एग्जाम्पल द वर्ड लिसन. लिसन की स्पेलिंग होती है LISTEN, बट द T is dropped. You're not supposed to pronounce the T. इसी तरीके से यहाँ पे आप गौर करेंगे कि वर्ड्स लिखे हैं वाइज एंड गिव. अब यहाँ पर जो लास्ट लेटर E है, ये जो इसका लेटर E है, ये है यहाँ पे साइलेंट. अब ये जो साइलेंट लेटर है, ये आम तौर पे हम जो है वो गौर नहीं, हम आम तौर पे इसको गौर नहीं करते कि जो है ये साइलेंट है, बट दिस इज एक्चुअली साइलेंट. आप देखें इसमें आपको आवाज नहीं आएगी. बट व्हाट इट डज, ये यहाँ पे करता क्या है? इसका एक बड़ा स्पेसिफिक काम है साइलेंट E का. वो काम ये है कि ये जो वावल आ रहा है, W के बाद I आ रहा है, G के बाद I आ रहा है, ये इस वावल साउंड को लॉन्ग वावल साउंड में कन्वर्ट कर देता है. जैसे WIS अगर होता है तो ये खाली विस हो जाता, लेकिन जब हमने E लगा दिया तो ये वाइज हो गया. इसी तरह GIV जो है वो गिव हो गया, गिव. सो यू डाइव डीप इनटू द डीप वावल साउंड्स. तो ये वावल साउंड्स को जो है वो प्रोलॉन्ग कर देता है. So I hope that you will inshallah complete your work as soon as possible, because after this I will be asking you to submit your copies for checking. Allah Hafiz.